ਹੈਲੋ एवरीवन ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 1B 1B ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ 1 ਐਂਡ ਓਨ ਟੂ ਫੰਕਸ਼ਨ 1 ਐਂਡ ਓਨ ਟੂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੈਟ x ਐਂਡ y ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦੋ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਸੈੱਟ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਨੋਨ ਐਮਟੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। if x and y two sets and both are non-empty, a function from f(x) to y is a rule which associate to each element x in x a unique element y in y। ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ x ਤੇ y ਦੋ ਸੈੱਟ ਹੈ, x to y ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ x ਦਾ ਹਰੇਕ ਐਲੀਮੈਂਟ y ਦੇ ਹਰੇਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ x to y ਦੀ, ਉਹ ਵਨ ਟਾਈਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਅਟੈਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ y in x ਦਾ ਕੋਈ ਯੂਨੀਕ ਐਲੀਮੈਂਟ y ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਗਰ x ਤੇ y ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸੈਟਸ ਹੈ, f ਇਜ਼ ਅ ਫੰਕਸ਼ਨ ਫਰੋਮ x to y, ਤਾਂ f ਫੰਕਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ x ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੁੱਲੀ ਯੂਜ਼ਡ ਹੋਣ, x ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਮਤਲਬ x ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ y ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਤੇ x ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਓਨਲੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਅਟੈਚ ਹੋਣ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ x ਦੇ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ y ਦੇ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਣ। x ਦਾ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ y ਦੇ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਪੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਹੈ x, ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਹੈ y। x ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ y, x ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ 1 2 3, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ 5 ਐਂਡ 6, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ 1 5 ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਤਾ, 1 6 ਨਾਲ ਵੀ ਅਟੈਚ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ x ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਟੈਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ y ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੈੱਟ ਲਿਆ ਮੈਂ 1 2 3 5 6, ਆਹ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਏ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਬਟ 3 ਐਲੀਮੈਂਟ x ਦਾ ਜੋ y ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ x ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਤੇ y ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ x ਸੈੱਟ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੁੱਲੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ x ਅਸਾਈਨ ਮੋਰ ਦੈਨ 1, x ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਉਧਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਇੱਕ 1 1 ਤੇ ਇੱਕ on to, ਠੀਕ ਹੈ। 1 1 ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ y ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਓਨਲੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਅਟੈਚ ਹੋਣ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ x ਸੈੱਟ ਹੈ, ਇੱਧਰ y ਸੈੱਟ ਹੈ, ਇੱਧਰ a b c d, ਇੱਥੇ e ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ 1 1 ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। 1 1 ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰਲੇ x ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤੇ y ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ 1 1 ਅਟੈਚ ਹੋਣ। ਮਤਲਬ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਫ x ਹੈਵ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਮੇਜਸ ਇਨ y, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜਸ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਇਮੇਜਸ। ਮਤਲਬ x ਦੀਆਂ ਇੱਧਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਮੇਜਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਔਨ ਟੂ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਔਨ ਟੂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰਲਾ y ਸੈੱਟ ਹੈ, ਇੱਧਰੋਂ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈਫਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਇੱਧਰੋਂ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈਫਟ ਰਹਿ ਜੇ ਤਾਂ ਔਨ ਟੂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਬਟ ਔਨ ਟੂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। A function from x to y is said to be onto if and only if each element in y is the image of at least one element in x। ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ y ਦੇ, ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ a b c d, ਇੱਧਰ e f g h, ਮੈਂ a ਨੂੰ e ਨਾਲ ਕਰਤਾ, b f c f d g, ਹੁਣ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈਗਾ 1 1 ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। 1 1 ਰੀਜ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ b ਤੇ c ਦੋਨੋਂ f ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੈ। ਔਨ ਟੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੇ h ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਟੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। y ਐਲੀਮੈਂਟ ਅਗਰ ਫੁੱਲੀ ਯੂਜ਼ਡ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ y ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਫਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਔਨ ਟੂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ a b c d e f, ਇੱਧਰ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇੱਧਰ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਏ, e ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, f ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਔਨ ਟੂ ਹੈ। ਬਟ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ 1 1 1 2 1 1 ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 1 1 ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 1 1 ਐਂਡ ਔਨ ਟੂ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੈਸੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਕੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਇਹਦਾ ਵਰਕਿੰਗ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੋ ਮੈਂ ਦੱਸੂੰਗੀ ਅੱਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ 1 1 ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਕਈ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਰੀਅਲ ਟੂ ਰੀਅਲ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ fx1 ਤੇ ਆਪਾਂ x1 ਤੇ x2 ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਲੈਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ x1 ਤੇ x2 ਦੋਨੋਂ ਡੋਮੇਨ ਮਤਲਬ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਫ fx1 ਇਕੁਅਲ ਹੈਗਾ fx2 ਦੇ, ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਐਂਡ ਤੇ ਕੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ x1 ਤੇ x2 ਵੀ ਖੁਦ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਣ। ਅਗਰ x1 ਤੇ x2 ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1 1 ਫੰਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4 ਹੈ ਜਿਵੇਂ f ਨੈਚੁਰਲ ਟੂ ਨੈਚੁਰਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਡਰਨ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ 1 1, f ਹੈਗਾ ਨੈਚੁਰਲ ਟੂ ਨੈਚੁਰਲ, fx ਹੈਗਾ 2x, x1 ਐਂਡ x2 ਲੈ ਲਿਖ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੈਚੁਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਧਰੋਂ ਨੈਚੁਰਲ ਚ ਲਵਾਂਗੇ x1 ਤੇ x2, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿ fx1 ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ fx2 ਦੇ, x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ x1 ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 2x1,
x की जगह तो x2 करांगे तो 2x2 ਉਹਨੂੰ उधर ले जाएंगे माइनस इक्वल टू 0 2 कॉमन कट लिया x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 2 जो नंबर है तो नॉन जीरो ही है तो x1 कि इक्वल आ गया x2 दे तो फंक्शन की आ गया 1 1 अगर फंक्शन इक्वल है उन्होंने पॉइंट्स इक्वल आ जाते हैं तो भी होंगे 1 1 नाउ फिफ्थ क्वेश्चन है इस तो बाद f real to real fx equal to x square show that function is not 1 1 ਹੁਣ देखो ये है फंक्शन 1 1 नहीं होगा रियल टू रियल ਦੇ ਵਿੱਚ रीजन की है देखो fx1 इक्वल टू fx2 रखिया x1 स्केयर इक्वल टू x2 स्केयर इन्हें इधर माइनस ले जाएंगे फैक्टर बनाए a माइनस बी a प्लस बी अगर दो टर्म्स की प्रोडक्ट जीरो है तो की होंगे इधर फर्स्ट वाला जीरो और सैकेंड वाला जीरो अगर फर्स्ट वाली टर्म जीरो है तो x1 इक्वल टू x2 आऊगा अगर सैकेंड वाली टर्म जीरो है तो x1 इक्वल टू माइनस x2 आऊगा हम देखो फंक्शन की डेफिनेशन की है कि अगर फंक्शनस इक्वल है तो x1 तो x2 इक्वल हाँ बट ये x1 x2 के इक्वल भी आ रहा है तो x1 माइनस x2 के भी तो रियल नंबर के नैगेटिव भी होंगे पॉजिटिव भी मतलब दोनों टर्म्स डिफाइन है x1 दियाँ दो इमेजिस आ गई इधर x2 तो माइनस x2 तो पॉसिबल ही नहीं ये फंक्शन तो नहीं होगा तो फंक्शन की है 1 1 नहीं होगा ठीक है कोई एग्जाम्पल लेके दस दें बेटा जिमें आप एफ के 1 के पुट करांगे तो 1 का स्केयर आंसर आऊगा एफ के अंदर -1 पुट करांगे तो -1 का स्केयर वो भी 1 ही आऊगा रियल नंबर के मतलब 1 तो -1 दोनों का आंसर 1 आ रहा है तो मतलब ये फंक्शन मैनी 1 हो गया ना जिहदे एक तो बाद इधर इमेजिस हो तो ये ऑन टू 1 1 नहीं होगा ठीक है तो ये है कि अगर अपने को सपोज आ रिजेक्ट हो जाता वाला पॉइंट तो x1 इक्वल टू x2 आ जाता दैन ये 1 1 बनना से ठीक है नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है लेट ए से दिता हुआ है 1 2 3 बी है 4 5 6 7 फंक्शन दिता हुआ है 1 4 2 5 3 6 बी फंक्शन फ्रॉम ए टू बी शो दैट फंक्शन इज 1 1 ठीक है हुणे तेनों इधर लिख लो फर्स्ट ए दी एलीमेंट ए सैट दे 1 2 3 बी दे विच है 4 5 6 7 1 का आंसर है 4 2 का 5 3 का 6 हुण देखो इधरले सारे एलीमेंट 1 to 1 टाइम अटैच इधर हो गए तो फंक्शन 1 1 हैगा यस इट्स 1 1 बट अगर मैं पूछा ऑन टू है तो ऑन टू नहीं होगा बिकॉज 7 है जो किसी नाल अटैच नहीं होया ठीक है नाउ 7th है शो डैट fx इक्वल टू 3x प्लस 5 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रैशनल इज 1 1 हुण उवें x1 तो x2 दो रैशनल नंबर ले ले fx1 इक्वल टू fx2 3x1 प्लस 5 इक्वल है 3x2 प्लस 5 5 नाल 5 कैंसल हो जाऊगा 3 नाल 3 x1 के इक्वल आ जाऊगा x2 दे तो फंक्शन हो गया 1 1 नाउ 11th है शो डैट द फंक्शन एफ रियल टू रियल गिवन बाय fx 4x माइनस 3 बाय 5 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल इज 1 1 एंड ऑन टू ने ऑन टू भी चेक करना है 1 1 की तो सेम डेफिनेशन वही रहेगी fx1 इक्वल टू fx2 fx1 x की जगह तो x1 इतने x1 की जगह तो x2 5 नाल 5 कैंसल आउट हो गया 3 नाल 3 कट्टिया जाऊगा तो x1 x2 के इक्वल आ गया तो फंक्शन आ गया 1 1 हम अगर इन्हें ऑन टू चेक करना है तो ऑन टू की पहले डेफिनेशन तो तुम्हें पता लग गया कि होंगी है कि वाई सेट फुली यूज होना चाहिए बट यदा वर्किंग मैथड की मैं दस दूँगी देखो ऑन टू जो 1 1 बो फंक्शन है उन्होंने इंजैक्टिव भी बोलते हैं ऑन टू बोलते हैं सबजैक्टिव जो फंक्शन 1 1 भी हो प्लस ऑन टू भी होवे उन्होंने बोलते हैं बाइजैक्टिव ये वाली वर्डिंग भी लिखी आ सकती है तुम्हें पता होना चाहिए ठीक है उन्होंने बाइजैक्टिव प्रूव कर रहे हैं आप हूँ ऑन टू द वर्किंग मैथड की है कि अगर एफ फंक्शन रियल टू रियल है तो कि लिखना है इफ फॉर ऑल इसका मतलब है फॉर ऑल सारे एलीमेंट वाई के आर चो आ रहे हैं तो उन्होंने लिए हरेक एलीमेंट वाई के लिए उधर अपने को होनी चाहिए है एक्स होनी चाहिए है सच डैट फंक्शन के अगर एक्स पुट करिए तो अपनों वाई मिल जाए डैट मीनस आप ऑन टू एक एक्स फाइंड आउट करनी पऊगी एक्स कितों आए आ पहले सैट के रियल चो अगर अपन ओवली एक्स पहले सैट च रियल है या नैचुरल के मिल जाती है तो फंक्शन की हो जाऊगा ऑन टू हम देखो इन्हू करना किमें है फॉर ऑल लिखना सारे में एवं है फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट एक एक्स कि आ रही है आर चो सच डैट एफ एक्स कि इक्वल है वाई दे डैट मीनस अपन इतने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमेशा तो एफ एक्स 4x माइनस 3 बाय 5 इक्वल टू वाई क्रॉस मल्टीप्लाई करो 4x माइनस 3 इक्वल है 5y इतों एक्स की वैल्यू आ गई 5y प्लस 3/4 हूँ देखो जो एक्स आया तुम चैक करोगी ये वाला एक्स कि आना चाहिए से रियल नंबर रियल नंबर के आ रहा है अगर ये एक्स रियल नंबर के आ रहा है तो ऑन टू है अदरवाइज नहीं है ठीक है तो ये जो सैट है वाई ने अगर रियल है ये रियल पॉइंट्स पुट करी जो तो आंसर भी रियल ही बनी जाऊगा तो एक्स रियल नंबर है यस द फंक्शन इज ऑन टू सपोज अगर ये क्वेश्चन नैचुरल टू नैचुरल होंदा तो एक्स अपने को आया सीगा 5y प्लस 3/4 तो एक्स नैचुरल बनना चाहिए तो ये नैचुरल है ही नहीं नैचुरल नंबर तो 1 2 3 4 होंगे तो फ्रैक्शनल पॉइंट्स भी आएंगे ये तो फंक्शन ऑन टू नहीं होंगे नैचुरल के ऑन टू नहीं होगा रियल के ऑन टू है
Now next है क्वेश्चन नंबर 13, शो दैट द फंक्शन एफ रियल टू x बिलोंग्स टू r, x वैल्यूज है -1 to 1, डिफाइन है फंक्शन x अपॉन 1 प्लस मोड x, तो दसना 1 1 ਤੇ 1 2 है कि नहीं। ਹੁਣ देखो ये फंक्शन दो पार्ट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। अगर x की वैल्यू ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 है तो मोड x पॉजिटिव वैल्यू आऊगी, अगर लैस दैन 0 है तो मोड x आऊगा -x। ठीक है, तो अगर आप केस 1 लैके चल रहे हैं कि x ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 है तो फंक्शन उपरला लैके चलांगे, तो उवें f(x1) इक्वल टू f(x2) क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे, उतो x1 x2 ਦੀ इक्वल आ गया तो फंक्शन की हो गया 1 1। ठीक है, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਉਵੇਂ 1 1 ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਤਾਂ 1 1 ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈਗਾ x ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕੇਸ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 1 1 ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਇਫ x ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ, f(x1) ਇਕੁਅਲ ਹੈਗਾ f(x2) ਦੇ, ਉਵੇਂ x1 अपॉन 1 माइनस x1 इक्वल है x2 अपॉन 1 माइनस x2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो यदि इतों x1 तो x2 इक्वल आ जाएंगे तो फंक्शन 1 1 होगा सैकेंड केस में। ठीक है, ना इस तो बाद करांगे तो ऑन टू दे लिए x ग्रेटर दैन 0 ਦੇ ਲਈ फंक्शन उवें लिख लांगे, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r, एक x आ रहा r टू सच डैट f(x) इक्वल टू y। f(x) ग्रेटर दैन ਦੇ ਲਈ अपने को f(x) आवाला फंक्शन सीगा, इक्वल टू y रखिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x आ गया, x भी रियल आना चाहिए सी, रियल आ गया यस, तो फंक्शन की है ऑन टू। सेम एज तुसी लैस दैन और इक्वल टू लिए भी चैक करोगे, केस 2 तुसी खुद चैक करोगे, डू योरसेल्फ। ना 14th है चेक इंजेक्टिव सरजेक्टिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इंजेक्टिव सरजेक्टिव का मतलब है 1 1 ऑन टू, बट फंक्शन है नैचुरल टू नैचुरल। उमें लैट x1 x2 बिलोंग करता नैचुरल नू, f(x1) इक्वल टू f(x2), x1 स्क्वेयर x2 स्क्वेयर फैक्टर्स बना लिए दे, इतों x1 दी दो वैल्यूज आ गई, एक 2 एक x1 माइनस x2, बट नैचुरल दे विच तां नैगेटिव वैल्यूज होंदियां नहीं, तो रिजेक्टिव हो जूगी। तो फंक्शनस इक्वल है, पॉइंट्स भी इक्वल आ गए, तो फंक्शन की हो गया 1 1। देखो नैचुरल दे विच 1 1 हैगा, बट रियल च नहीं सी, पिछे करवाया तुहानूं मैं। ऑन टू चेक करना है, ऑन टू दे लिए फॉर ऑल y बिलोंग्स टू नैचुरल, देयर एग्जिस्ट x भी नैचुरल च है सच डैट f(x) इक्वल टू y। f(x) है अपने को x स्क्वेयर इक्वल टू y, x कढ़ना है, x कितना आ गया इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट y। अंडर रूट वाले पार्ट्स आ नैचुरल आते नहीं, तो x नैचुरल नंबर में बिलोंग ही नहीं करता, बट अपन x चाहिए कि नैचुरल के विचों, तो नैचुरल का कोई भी x नहीं मिलेगा, तो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। ठीक है, बाकी 14 के जो पार्ट्स है खुद ट्राई करोगे, सेम ये नाल दी है ना। इस तो बाद है क्वेश्चन नंबर 15, एफ ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए सच डैट एफ दे विच अगर ए बी पुट करांगे तो उसका आंसर क्या होगा, बी ए इज बाइजेक्टिव, मतलब 1 1 ते ऑन टू, बाइजेक्टिव मतलब 1 1 प्लस ऑन टू प्रूफ करना है। ठीक है, 1 1 के लिए वही दो पॉइंट्स लै लिए, आप इस ऑर्डर पेयर लैने पैणगे क्योंकि आप ए क्रॉस बी के एलीमेंट लै रहे हैं, A1 B1 A2 B2 कि आ रहे हैं ए क्रॉस बी चो, उवें फंक्शन के पुट किए, जो पुट करांगे तो ए बन जूगा B1 A1 B2 A2। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਦੋ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਇਕੁਅਲ ਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਵਾਲਾ ਪੇਅਰ ਫਸਟ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਗਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲਾ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ, ਤਾਂ B1 B2 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ A1 A2 ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਵਰਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ A1 B1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ A2 B2, ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 1 1, ਮਤਲਬ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਇਕੁਅਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਏ। ऑन टू ਦੇ ਲਈ ਫॉर ऑल YX ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ B क्रॉस A ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ XY ਆਊਗਾ A क्रॉस B ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ सच डैट f(x) y इज इक्वल टू yx, ये हमेशा एग्जिस्ट करूगा ही करूगा, तो फंक्शन की है ऑन टू। ठीक है, ना 16th है f(x) मोड x, ये ना तो 1 1 होंगे ना ही ऑन टू होंगे, किवें प्रूफ करांगे, फॉर एग्जाम्पल प्रूफ कर लाँगे f(x) मोड x है, देखो अगर f दे विच -x पुट करांगे तो भी मोड x आऊगा, प्लस द x पुट करांगे तो भी पॉजिटिव x ही आऊगा, मतलब x का आंसर तो -x का दोनों का सेम आंसर आऊगा अपने को इत्थे, तो फंक्शन 1 1 नहीं होया, फंक्शन इज नॉट 1 1। ठीक है, ਹੁਣ ऑन टू का मतलब की होंगे है, देखो इधर अपने को जो सैट है कुछ नहीं दिता, तो डैट मीनस रियल टू रियल है, इधर भी रियल वैल्यूज है सारिया, इधर भी रियल वैल्यूज है, रियल होंगे -इनफिनिटी टू इनफिनिटी। हूँ देखो जो f(x) मोड x है, हूँ ये आंसर है मतलब y के जो पॉइंट्स है वो तो सारे की आएंगे पॉजिटिव आंसर आएंगे। f(x) अगर अपने को मोड x है तो ये वैल्यूज आएंगी, एक तो पॉजिटिव वैल्यूज आएंगियाँ अप टू सोन इनफिनिटी तक, नैगेटिव तो आंसर ही नहीं आएंगे, तो रेंज यदि की आऊगी 0 टू इनफिनिटी, रेंज तो 0 टू इनफिनिटी आ गई, बट ये वाई सेट है कि पूरा रियल नंबर है, बाकी नैगेटिव नंबर तो ये एग्जिस्ट ही नहीं होए। अगर रेंज फुल सैट रियल नंबर के इक्वल नहीं आ रही तो फंक्शन ऑन टू नहीं होंगे। ठीक है, अगर रेंज इक्वल ना हो कोडमेन दे दैन फंक्शन नॉट ऑन टू होंगे। कोडमेन मतलब जो फुल सैट गिवन है, रेंज जो अपने आंसर आया है, अपने आंसर की आया है ओनली पॉजिटिव वैल्यूज, एंड कोडमेन की है -इनफिनिटी टू इनफिनिटी, माइनस वाले वैल्यूज अपनी आई ही नहीं, मतलब रेंज तो फुली यूज नहीं हुई ना, अपना वाई सेट फुली यूज नहीं होया, तो फंक्शन इज नॉट ऑन। ठीक है,
नाउ 17th क्वेश्चन है, शो दैट दी एफ एक्स ए सिग्नम फंक्शन है, बोलते सिग्नम फंक्शन की है कि अगर 1 आंसर आऊगा जो एक्स ग्रेटर दैन 0 है, 0 आऊगा जो एक्स 0 है, -1 आऊगा इफ एक्स इज लेस दैन 0, तो फंक्शन ना तो 1 1 है ना ही ऑन 2 है। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਖੋ एफ एक्स 1 ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, -1 ਹੈ ਜਦੋਂ -∞ to 0 ਹੈ, ਮਤਲਬ ਫੁੱਲ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ 1 ਆਊਗਾ, ਕਦੀ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ -1 ਆਊਗਾ, ਸੇਮ ਆਂਸਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੈਨੀ 1 ਹੋਇਆ 1 1 ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰੇਂਜ ਸੈੱਟ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, -1 0 1, ਤਿੰਨ ਆਂਸਰ ਹੀ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ 1 ਆਊਗਾ ਆਂਸਰ, ਜਾਂ 0 ਜਾਂ -1 ਹੈ। ਇਹ ਫੁੱਲ ਰੀਅਲ ਸੈੱਟ 'ਚ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਰੀਅਲ ਸੈੱਟ ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਗਰ ਰੇਂਜ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੋਡੋਮੇਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੋਟ ਔਨ ਟੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੇਂਜ ਆਪਣੀ -1 0 1 ਹੈ ਐਂਡ ਕੋਡੋਮੇਨ ਆਪਣਾ ਫੁੱਲ ਸੈੱਟ ਹੈਗਾ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ, ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੋਟ ਔਨ ਟੂ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, एफ एक्स है log 1 - x अपॉन 1 + x शो करना है कि f ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। एफ के अंदर -x पुट करो, x की जगह तो -x प्लस का हो गया माइनस का हो गया, अगर log के अंदर दो टर्म्स डिवाइड च तो अड अड हो जाएगियां, माइनस ये कॉमन कढ़ लो, आ टर्म माइनस की होगी प्लस की होगी, प्लस वाली टर्म ऊपर लिखनी है, माइनस वाली टर्म नीचे लिखनी है, तो देखो अगेन वही फंक्शन वापस बन गया एफ एक्स, तो माइनस बार आ गई, तो एफ के अंदर जो -x पुट की तो माइनस वो बार आ गई, तो फंक्शन की हो गया इक्वल हो गया। ठीक है, हूँ एक्सरसाइज 1 भी मोस्टली सारे सम करवाते, अगर कोई डाउट है तो पूछ लियो। ठीक है, तेन कंप्लीट कर ली।